सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसी के साथ मैं कामना वैद, असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस, स्वागत करती हूँ आप सबका टू द युवा समिट। I welcome all of you to the Yuva Summit lecture on Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat, organized by Youth Wing and Brahma Kumaris and mates as a part of Viksit Bharat and Nasha Mukt Yuva initiative of Government of India. It is an important issue that affects our society deeply, Nasha Mukti, or the freedom from addiction. Addiction, whether it is to alcohol, tobacco, drugs, or even digital distractions that we have nowadays, it is a great challenge. It is my privilege to welcome our esteemed guest. We have the chief guest with us, Ms. Soumya Saurabh, DM, Northwest District, Delhi. Please, a huge round of applause for ma'am. Next we have special guest Dr. Swapan Gupta, Senior Neurologist, GB Pant Hospital, Delhi. BK Rajni Didi, Director of Brahma Kumaris, Sector 21, Rohini. BK Preeti Didi from Brahma Kumaris, Rohini. Professor Neelam Sharma, Director MATE. And Professor Rajni Malhotra Dhingra, Director Mains. I also welcome all the HODs, my fellow colleagues and dear students. I take this opportunity to introduce the Chief Guest, Ms. Soumya Saurabh, DM, Northwest District. Ma'am is an IS officer of 2014 batch. She hails from Delhi and cracked UPSC Civil Services examination at the young age of 23, securing an AI rank of 133. It is an honor to have ma'am with us. I request Professor Neelam Sharma ma'am and Rajni ma'am to welcome Soumya ma'am. अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, Now I request Rajni ma'am and Neelam ma'am and Rajni Didi to welcome Dr. Swapan Gupta with a sapling and memento. Didi Rajni, आप भी सुमन है मेरे का दीदार
all the dignitaries to come up for the lamp lighting ceremony. शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। Now, I would like to invite our chief guest for the day, Ms. Soumya Saurabh, DM Northwest District, to address the gathering. मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जो ये थीम है, इट इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री, एंड कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग डाइवर्टेड, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, और नशा मुक्त इट इज़ नॉट जस्ट ड्रग्स या टोबैको या सिगरेट्स, देर आर मैनी अदर थिंग्स जिसकी आदत लग जाती है तो लग जाती है, कुड बी एनी थिंग. मैडम वॉज कंपेयरिंग, आई थिंक आपने ही बोला था अबाउट द डिजिटल distractions, so this is also another aspect of it, and I think कि उसका जो इफ़ेक्ट है वी सी इन वेरी यंग चिल्ड्रन ऑल्सो, 2-3 साल के बच्चों में भी देखने को मिलता है, एंड वी जस्ट कांट लीव आवर मोबाइल फोन्स. आई कैन सी सम ऑफ यू ऑल्सो glued to your screens during the event also. तो इफेक्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. नशा सिर्फ वही नहीं है जहाँ आधे लोगों को यहाँ पे ये लग रहा होगा हम तो भाई कुछ करते ही नहीं है, वी डोंट ड्रिंक, वी डोंट स्मोक, वी डोंट डू एनीथिंग, वी आर सिटिंग हियर इन दिस रूम टू जस्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अभी हो सकता है इस चीज़ में आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो, बट यू माइट हैव फ्रेंड्स. फ्यूचर किसने देखा है, एंड एट दिस एज, जिस एज पे आप लोग हो, अकॉर्डिंग टू मी एक इंसान की लाइफ में 8 साल बहुत क्रिटिकल होते हैं, 9th to 12th and then 12th to your whenever you finish your education. According to me it is 4 years. After that you are free to pursue more, but वो 8 साल बहुत important है, and all of you are part of that. तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि इस एज में अगर आप किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हो तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पेव पाथ इन फ्यूचर. लाइक आई एम डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल ऑफ यू एट द मोमेंट. मेरे सामने बैठ के ही हंस रहे हो आप लोग. आई एम रियली worried about the teachers कि वो कैसे पढ़ाते होंगे. My hats off to all of you, my appreciation to all of you कि भाई आज की जनरेशन के साथ डील करना it is very very tough. Please to both the senior officers who are sitting from this college, do not take me negatively, but I expected a little more discipline. क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई तो डॉक्टर साहब टोल्ड मी दैट यू आर क्वाइट पंक्चुअल. आई एम हियर बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन ओनली. आप लोगों को पता नहीं, मतलब जो भी हम लोग कर रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, और whoever is achieving anything in their lives, उसका सिग्निफिकेंस पता है कि नहीं पता, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए जानना कि यहाँ पर जो भी पहुँचते हैं बहुत मेहनत से पहुँचते हैं. वी आर वर्किंग डे एंड नाइट कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन
के लिए हम एक अच्छा फ्यूचर दे सके. वी आर वर्किंग ऑन दैट लाइन्स. काइंडली टेक दिस टाइम वेरी वेरी सीरियसली. जो हंस रहे हैं पता नहीं बाद में कौन कितना हंसेगा. आई डोंट नो. As simple as that. क्योंकि I have been a very sincere student. I have been very respectful to all my teachers and my teachers still remembers me, चाहे स्कूल की हो चाहे कॉलेज के हो. Only for this reason. पढ़ाई जो है एक मापदंड नहीं है एक बच्चे को अच्छा या खराब कैटेगराइज करने का. इट इज़ द रिलेशन व्हाट यू बिल्ड विद योर टीचर्स, यू नो, विच हेल्प्स यू गो अहेड इन फ्यूचर. क्योंकि मार्क्स तो सब ले आते हैं आजकल. आप लोग को मार्क्स लाना इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. 90%, 95%, 100% उससे फ़र्क नहीं पड़ता. एट द एंड ऑफ द डे आप किस तरीके के इंसान हो फ़र्क उसी से पड़ता है. डिफरेंस वहीं पे क्रिएट होता है कितना आप सेंसिटिवली इशू से डील कर रहे हैं, कितना आप लोग इश्यूज़ की गहराइयों में जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. इट इज़ अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस. कैन बी इन एनी स्फेयर, कैन बी इन एनी फील्ड. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट विद one or two of you. अगर किसी को genuinely कुछ पूछना है तो, because I always like interacting with students and I have done this in the past. और students do ask me genuine questions. I'm here if one or two of you would want to ask anything. Otherwise मेरी तरफ से best wishes to all of you. और I hope that whenever I visit here next time, we will have better participation from the audience. Can we ask if somebody wants to ask anything? If they want to know कि UPSC में क्या करना है, कैसे करना है. हाँ जी. यार एग्ज़ाम क्लियर करने का तो सिंपल है. You have to be consistent and disciplined. बिना उसके कुछ नहीं हो सकता. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग. उसके अलावा और कुछ नहीं है. और वो इट इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी. उसमें ही होता है वो. उसके अलावा आई डू नॉट सी एनीथिंग एल्स फॉर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम. कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क. तो यार आप कोई भी जॉब सिक्योर करनी हो करना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट. बट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ द की. और कुछ नहीं है. जो डिटेल्स हैं अबाउट दिस वो तो आपको आजकल यूट्यूब पे इंटरनेट पे सब कुछ मिल ही जाएगा. ठीक है. मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बता सकती हूँ कि सिर्फ वही दो चीज़ें हैं जो मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं बिटवीन यू एंड द अदर्स. एंड डिस्ट्रैक्शंस, अगेन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस आर something one should stay away from. अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में. वो बोलने की बातें होती हैं बट टू रीच द टॉप यू हैव टू बी यू नो स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. एनीवन एल्स? ठीक है. थैंक यू. Ma'am, for being an inspiration to each one of us. Rightly said as ma'am, that discipline, consistency and distraction is the key to success. So we need to manage that. Now I invite Rajinder Bhai, जो नशा मुक्ति पे एक कविता प्रस्तुत करेंगे हमारे समक्ष. तो मैंने नशा मुक्त पे कुछ कविता लिखी है, कुछ पंक्तियाँ लिखी है कि मुक्त करो तुम खुद को इससे, नशा मुक्त बन जाओ तुम, परम पिता के बच्चे हो तुम, अब उपयुक्त बन जाओ तुम, और डिस्ट्रक्शन करते हो अपना, कंस्ट्रक्शन में आओ तुम, औरों को भी राह दिखाओ, खुद को स्वयं बचाओ तुम, बीड़ी सिगरेट वाइन को भी कभी न हाथ लगाओ तुम, परम पिता की शिक्षाओं को जीवन में अपनाओ तुम. ये शिक्षा तो आप ले रहे हो लेकिन उसमें आध्यात्मिक अगर शिक्षा आप ऐड करते हो तो ये जो चीज़ें हैं नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है वो सफल हो सकता है. विपरीत दिशा को ले जाते हैं वो प्रतीक मिटाओ तुम, रूढ़िवाद की विपरीत धारा को अब मत अपनाओ तुम, एक विवेकानंद नहीं हो तुम लाखों की संख्या हो, एक विवेकानंद नहीं हो तुम लाखों की संख्या हो, पूरी दुनिया के सपनों को
पूरी दुनिया के सपनों के तुम सच्चे अभिभावक हो। तोड़ फोड़ मत करो अभी तुम, पत्थर नहीं उठाओ तुम, नव निर्माण के सब कार्यों में अपना हाथ बढ़ाओ तुम। असीम शक्ति जो भरी हुई है, युवाओं में बहुत शक्ति होती है, उसका वो मिसयूज कई बार कर लेते हैं। असीम शक्ति जो भरी हुई है उसका तुम उपयोग करो। दुख दर्दों को नहीं बढ़ाओ, आगे बढ़कर स्वयं भरो। विघटनकारी ताकत के बहकावे में मत आओ तुम। ये देश तुम्हारा भी अपना है, इस पर जुल्म न ढाओ तुम। परम पिता ने ज्ञान योग का नशा रूहानी दिया तुम्हें, भांग धतूरा नहीं दिया था, राजयोग अपनाओ तुम। राजयोग अभ्यास करो तुम, इसका नशा चढ़ाओ तुम। अशांति को तुम नहीं बढ़ाओ, ओम शांति में आओ तुम। कर्णधार हो तुम भारत के, उच्च शिक्षा पाओ तुम। ब्रह्मा कुमारी सेंटर की भी शिक्षाएं अपनाओ तुम। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी, बहुत ही प्रेरणादायक कविता के लिए। It is our privilege to have with us one of the top neurologists of India, Dr. Swapan Gupta, MBBS, MD, DM Neurology, PDF, Epilepsy, Professor of Neurology, Registrar Academics, G.V. Pant Institute of Postgraduate Medical Education and Research, New Delhi, India. Dr. Swapan Gupta is a senior neurologist at G.V. Pant Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Delhi. Currently working as a professor of neurology, he is also a registrar academic and academic council member of University of Delhi. Sir did his MBBS, MD, DM Neuro from Maulana Azad Medical College and secured gold medal in MBBS. He is also trained from Venice International University, Italy. So major areas of expertise are consciousness, brain-mind principles, thought power, sanskar transformation, stress-free living, addiction removal, and brain rewire. The concept of brain as a wire circuit is unique and scientific. He is motivational speaker and invited faculty at major conferences related to science and spirituality. He has done TV shows including Zindagi Bane Aasan, Muskaan, aired on the Peace TV of Mind TV channel. So has also conducted sessions on fear management, science of spirituality, mysticism and science meditation both within the country and abroad. He is the owner of the YouTube channel Brain Rewire that deals with the mental issues prevalent in the society. Sir also provides free neurology services at Global Hospital Mount Abu and organize free health camps at Sirohi district, Mount Abu. The combination of knowledge of both the modern and neuroscience and ancient spiritual principles is rare and unique. So we are blessed to have Dr. Swapan Gupta with us. So without taking much time, I invite Dr. Swapan Gupta to take over the session. Over to you, sir. ये प्रॉब्लम जो एडिक्शन की है, गवर्नमेंट ने एक युवा नशा मुक्त युवा अभियान चलाया। क्यों चलाया? अभी रिसेंटली काशी में एक समिट हुआ था जिसमें हमने भी पार्ट लिया। यू कैन सी मी standing there. I was representing the team from Brahma Kumaris and as a medical specialist. वहाँ पर एक पॉलिटिशियन थे, he was himself a ex-MP, उनकी वाइफ MLA। उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी शेयर की। उनके बेटे को स्कूल के बाद जब वो कॉलेज में गए, he got addicted to drugs, smoking, alcohol। बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब ये बाहर ऐसे नहीं आ रहा है तो उसकी शादी कर दी जाए। They got him married। लेकिन मैरिज के बाद भी कुछ दिन तक उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर से ही स्टार्टेड एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज। उनका लिवर खराब हो गया था। उन्होंने शेयर किया इन द होल ऑडियंस। व्हाट डिड ही शेयर? उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में ऐसा लड़का है तो उसकी कभी शादी मत करना। वेरी इमोशनल मोमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक फादर कह रहा है
ऐसे लड़के से आप कभी अपनी लड़की की शादी नहीं करना। ड्रग्स डज नॉट ओनली डिस्ट्रॉय लाइफ ऑफ वन पर्सन बट फैमिलीज। कुछ स्टैटिस्टिक्स कि कितना इसका मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का। अगर आप देखो, स्मोकिंग, अल्कोहल और एनी सब्सटेंस अब्यूज, ये स्टैटिस्टिक्स है जो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दिस एडिक्शन। और ये आपका एडिक्शन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कहीं ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का ये एक स्टैटिस्टिकल डाटा है जिसमें आप देखेंगे स्मोकिंग, अल्कोहल, स्मोकलेस टोबैको, एनी सब्सटेंस अब्यूज जो अलग अलग ग्राफ में दिखाया, इट रीचेज अप टू मोर देन 50%। हम लोग अभी पीछे मणिपुर, मिजोरम में गए, वहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। लेकिन जैसे ही मैंने लैंड किया वहाँ पर, देयर वाज अ ऑरा ऑफ और स्मेल ऑफ स्मोक इन द एयर। मैंने देखा आसपास कौन स्मोक कर रहा है, कोई भी नहीं था, लेकिन वो इतना स्मोकिंग वहाँ इतना ज़्यादा है कि हवा में ही पूरा स्मोक का स्मेल आता है। और सबसे चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं, 15 to 19 ईयर्स, आप लोग ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स के होंगे। 15 ईयर्स से शुरू हो जाता है, मैक्सिमम 25 to 35 ईयर्स में इसका एफ्लिक्शन होता है। और इसका मैग्नीट्यूड 70% तक है, किसका? स्मोकिंग का, अल्कोहल का 50%। तो ये नहीं सोचना कि हम करते हैं नहीं करते हैं, पीयर प्रेशर बहुत कुछ करवा देता है। एज अ डॉक्टर अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें, मेडिकल साइड इफ़ेक्ट, सोशल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, रिलेशनशिप का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स टोबैको के, कोई भी ऑर्गन नहीं बचता जिसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट ना आए। ब्रेन से लेके किडनीज तक, लिवर, लंग्स, एवरीथिंग, हार्ट, सब कुछ अफेक्ट होता है। सेम विद अल्कोहल, आपका पूरा कैंसर्स, क्रॉनिक लिवर डिजीज, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके ब्रेन की पावर को अफेक्ट करते हैं। मैं अपने हॉस्टल में, जो हमारा मौलाना मेडिकल कॉलेज है, उसमें वार्डन भी था। तो एक बार मैंने, एक स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट, वो स्मोक कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि तुम तो मेडिकल स्टूडेंट हो, क्या तुमने नहीं पढ़ा है कि इनसे क्या होता है? तो उसने कहा सर मुझे पता है। तो फिर मैंने पूछा आप क्यों करते हो स्मोकिंग? तो उसने क्या जवाब दिया, जो कॉमन आंसर है, क्या जवाब दिया होगा? स्ट्रेस। वेरी गुड, स्ट्रेस। मैडम कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? लेट अस सी हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, वी अंडरस्टैंड, स्ट्रेस में है, स्टडीज़ का बहुत प्रेशर है, पीयर प्रेशर बहुत है। एक का जवाब था सर अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे तुम कौन सी दुनिया में हो, तुम तो बहुत कंजर्वेटिव हो। यही बात है ना। तीसरा, सोशल रिकॉग्निशन, हमें कौन एक्सेप्ट करेगा सोसाइटी में। चौथा, प्लेजर, मुझे खुशी चाहिए, मैं कहाँ से लूँ। ये सारे फैक्टर्स हमें इस तरफ लेकर जाते हैं, जबकि हमें पता है, किसको नहीं पता है? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि स्मोकिंग खराब है? पैकेट पे भी लिखा होता है। अल्कोहल, ड्रग्स से हमारी प्रॉब्लम होती है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? हमें इसको समझना होगा ताकि हम रूट्स पे काम करें। जब एक जंगली घास पैदा होती है, अगर आप ऊपर ऊपर से काट दो तो फिर क्या होगा? वो फिर से ग्रो कर जाएगी, लेकिन हमें क्या करना होगा? जड़ से उसको निकालना होगा। एडिक्शन यहाँ से शुरू होता है, ब्रेन में। इनफैक्ट कोई भी एडिक्शन, चाहे स्मार्टफोन एडिक्शन है, चाहे ड्रग्स एडिक्शन है, चाहे कोई भी हैबिट है, हम यहाँ पर एडिक्शन, कई लोगों को चाय पीने का एडिक्शन होता है, कई लोगों को लेट उठने का भी एडिक्शन होता है, कई लोगों को कोई एक हैबिट,
बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो भी एडिक्शन होता है। थोड़ा समझते हैं एडिक्शन काम कैसे करता है। ये जो ड्रग्स होते हैं ना, या स्मोकिंग या जो अल्कोहल होता है, क्या करता है, हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज करता है जिसको क्या कहते हैं, डोपामिन। आप लोगों को पता होगा, रश, डोपामिन रश होता है ना। यूजुअली भी जब आप कुछ अच्छा खाते हो तो डोपामिन निकलता है, लेफ्ट साइड में देखो डोपामिन रिलीज हो रहा है, राइट। लेकिन जब कोई ड्रग्स लेता है तो डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा। ये सारे डोपामिन के केमिकल्स हैं और ये फिर हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर देते हैं, खुशी देते हैं। फिर क्या होता है, खुशी तो मिली, लेकिन जब डोपामिन आया, आपको फीलिंग प्लेजर हुआ, उसके बाद जब आपने नहीं लिया तो ब्रेन में एक सिग्नल क्रिएट होता है जिसको कहते हैं वांटिंग, मुझे चाहिए, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, बहुत प्रेशर है, चाहिए। उसको पता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो वांटिंग है, इतनी क्रेविंग पैदा होती है उसकी कि उसको लेना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं वो एडिक्टेड हो गया है। वो ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाता है और फिर लेता है, और डोपामिन फिर से लेता है, फिर से एक साइकिल बन जाती है और वो इस साइकिल में फंस जाता है। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ बिगेट्स, मतलब एक बार लिया वो साइकिल बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, ये गलती कभी मत करना कि मेरे दोस्त ने कहा एक बार ट्राई कर लो, दोबारा मत लेना। एक बार ट्राई कर लिया, आपकी बॉडी को एक बार डोपामिन के फीलिंग, प्लेजर की वो आ गई फीलिंग, तो ये साइकिल में आप फंस जाओगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, एक बार ही ट्राई करने से पहले 10 बार ही सोचना कि सर ने उस दिन क्या बताया था, कहीं मैं साइकिल में ना फंस जाऊं। फिर क्या होता है, मान लो एक बार किसी ने ले लिया, अब उसका ब्रेन हो गया सेंसिटाइज, ठीक है, लेकिन वो सोचता है शुरू में गो फॉर इट, लूं, थिंक अबाउट इट, नहीं लेता हूं, माइंड सोचता है। लेकिन विद टाइम क्या होता है, उसका जो गो फॉर इट पाथवे होता है ब्रेन में, वो हावी होने लगता है, थिंक अबाउट इट वीक हो जाता है, और फिर धीरे धीरे जब एडिक्टेड हो जाते हैं तो थिंक अबाउट इट खत्म ही हो जाता है और गो फॉर इट बहुत एक्टिव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब हमारे ब्रेन में, जब आप देख रहे हो यहाँ पर डोपामिन रिलीज होता है, वो हमारे जीन्स में भी अटैच होकर और ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे ब्रेन के इस हिस्से को, जहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग आती है, उसको डैमेज करता है। इसको हम कहते हैं फ्रंटल ब्रेन, आगे का हिस्सा। और ये हिस्सा पता है किस लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन में, यहीं से हमारी मेमोरी आती है, यहीं से हमारी क्रिएटिविटी आती है, रैशनल थिंकिंग आती है, जजमेंट आती है, हमारा इमोशनल कंट्रोल आता है। तो जो लोग ये नशा करते हैं, उन लोगों की आप देखोगे तो जजमेंट पावर बहुत वीक होगी, इमोशनल कंट्रोल नहीं होता उनके अंदर। आपने देखा है ना, शराब पीकर मूवीज़ में देखते हो ना, वो कुछ भी करते हैं। जो सिगरेट पीते हैं उनकी क्रिएटिविटी कहीं ख़त्म हो जाती है। आप स्टूडेंट लोगों के लिए अगर आपकी मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस, जजमेंट पावर ख़त्म होने लगे तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है। तो क्यों अपने आप को इस डैमेज में डालना है? इसके ऊपर इफेक्ट देखा गया ब्रेन के ऊपर क्या होता है। तो जो आपको बताया, ये एक ब्रेन का स्कैन है। आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में वो नॉर्मल ब्रेन है, राइट साइड में एडिक्टेड ब्रेन है। येलो मीन्स अच्छा, ब्लू मीन्स पॉइजनस। पॉइजन का कलर दिखाते हैं ना शिव जी का, शंकर का क्या ब्लू दिखाते हैं ना। आप खुद देखो, एक एडिक्टेड ब्रेन में येलो कम हो जाता है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है, आप जल्दी ब्रेन कमज़ोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। नशा हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो डोपामिन रश देता है, तो अपने स्ट्रेस फैक्टर को रिलीव करने के लिए, प्लेजर लेने के लिए, कहीं ना कहीं हमें वो अपने अंदर एक सोशल रिकॉग्निशन के लिए
हम इसके आदी हो जाते हैं। जो लोग आदी हो जाते हैं हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं? एज अ डॉक्टर हम उनको कुछ मेडिसिन देते हैं, लेकिन मेडिसिन उनके एडिक्शन को रिमूव नहीं करता। मेडिसिन जब वो छोड़ते हैं जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। मेरा खुद का नीस नेफ्यू वो रोहिणी में ही रहते हैं, वेरी वेल ऑफ फैमिली। उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया सोनीपत में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए। वहाँ पे ड्रग्स की आदत लग गई, इतनी आदत लग गई जब उनके पेरेंट्स को पता चला तो वो वापस ले आए, लेकिन इतने आदी हो चुके थे कि अब वो उसके बिना रह नहीं सकता था। उसको विड्रॉल सिम्टम्स आते थे, घबराहट होती थी, वो बेचैन होता था। तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि आप इसको थोड़ा थोड़ा दे दो। एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे को ड्रग्स देना आसान काम है? आप सोच सकते हो क्या होता है, लेकिन उसको उस सर्कमेंट करने के लिए, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो है साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स। आप लोगों ने सुना होगा डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, सुने हैं ना? लेकिन एक प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जब तक है तब तक वो डी एडिक्टेड रहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है फिर से उसको आदत लगती है, क्योंकि वो फिर से उस एनवायरनमेंट में है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है। हम इसको कैसे डील करते हैं? हम इसको कहेंगे माइंड थेरेपी। कैसे हम एडिक्शन को रिमूव करते हैं? थोड़ा साइंटिफिकली आप समझते हैं। आप लोग लॉ और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ना, लेकिन इजी साइंस अगर हम समझाएं आपको, कि डोनाल्ड हेब हैं, इन्होंने प्रिंसिपल दिया कि ब्रेन में कोई भी आदत कैसे बनती है। जब भी आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो आपके न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स है नीचे, उसमें फायरिंग होती है, और जब बार बार वो करते हो विद टाइम वो फायरिंग वायरिंग में बदल जाती है। तो आप यहाँ पर देखो, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया विद टाइम। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसको हम यूज़ करते हैं कि कैसे अपने ब्रेन को मॉडिफाई कर सके। सिर्फ ड्रग्स की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसे मैडम ने कहा मोबाइल एडिक्शन। अगर आप मोबाइल एडिक्शन से भी छुटकारा पाना चाहते हो, उसको भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऐसी आदत, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस लेता हूँ, जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करना चाहता हूँ, हर चीज़ हम चेंज कर सकते हैं अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी से। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ये एक यंग लड़का पहली बार कॉलेज जाता है, तो कॉलेज में आमतौर पर क्या होता है, अब तुम बड़े हो गए हो, एडल्ट हो गए हो, तो सब चलो अब सिगरेट और शराब। कहाँ बच्चे, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तो ये तो एडल्ट की चीज़ें करते हैं, होता है ना ऐसे ही। तो इसको पहली बार सिगरेट ऑफर किया गया। अब उसके मन में दो थॉट्स आते हैं। एक थॉट आता है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, एक थॉट आता है मैं सिगरेट पी लेता हूँ। ऐसे ही होता है ना, कोई भी चीज़ के दो थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, ये कर लूँ या नहीं कर लूँ। उस दिन वो पीयर प्रेशर में आके सिगरेट वो डिसाइड करता है कि मैं आज पी लेता हूँ। तो ये थॉट सिगरेट पीने वाला, इसमें न्यूरॉन में फायरिंग आती है, और ये सिगरेट नहीं पीने वाला जो न्यूरॉन था, इसमें फायरिंग नहीं होती है, वो सिगरेट पी लेता है। विद टाइम क्या होगा, जब वो सेकंड थर्ड टाइम पिएगा सिगरेट, फायरिंग वायरिंग। अब ये सिग्नल, ये जो सर्किट है उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ब्रेन में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, आप लोग पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका टॉपिक होता है ना। ब्रेन में भी इतना करंट होता है कि एक बल्ब जल जाए 12 वॉट का, तो उसमें फायरिंग होती है, -70 माइक्रोवोल्ट का करंट होता है। फिर वो बार बार जब फायरिंग होती है तो वायरिंग, मतलब अब यहाँ पर उसका वो संस्कार बन गया। अब वो सोचेगा नहीं कि मैं पीऊँ नहीं पीऊँ, ये पक्का हो गया। इसको हम कहेंगे एडिक्शन। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको कोई बताता है कि देखो
आप जो सिगरेट पीते हो ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इंटेलेक्ट, आपको खांसी रहने लगी है, आपको मुंह में छाले आ रहे हैं, आपका पेट खराब रहने लगा है क्योंकि आप सिगरेट पीते हो इस वजह से, और आपको बीमारी हो जाएगी। उस दिन वो पहली बार वो लड़का डर जाता है और बहुत कन्विक्शन से कहता है मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। पहली बार जब वो कहता है तो सिग्नल कहाँ जाता है? नो स्मोकिंग वाला सिगरेट एक्टिवेट होता है, ये वाला सर्किट। पहली बार सिग्नल नीचे जाएगा, ऊपर सर्किट में सिग्नल नहीं गया। और फिर से कॉन्सेप्ट क्या है? फायरिंग मेक्स वायरिंग। जब वो सेकंड थर्ड टाइम ऐसा करेगा तो उसका ये सर्किट स्ट्रांग होता जाएगा और वो फिर से नो स्मोकिंग वाला सर्किट स्ट्रांग हो जाएगा और वो स्मोकिंग छोड़ देगा। आप लोग कितने बजे उठते हो सुबह? कौन 6 बजे से पहले उठता है? वेरी गुड। 6 बजे के बाद कितने लोग उठते हैं? ओके, हम 3:30 बजे उठते हैं। अब आप कहोगे सर आप 3:30 बजे उठते हो डॉक्टर, फिर आप तो रात को भी लेट सोते हो। जैसे आपको 3:30 बजे ऑड लगता है, हमें 8 बजे सोना ऑड लगता है, 6 बजे के बाद तक सोना ऑड लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी वायरिंग कैसी है? अर्ली वेकिंग की, और आप लोगों की वायरिंग कैसी है? लेट वेकिंग की। अब आपको डिसाइड करना है आपको अपनी वायरिंग कौन सी करनी है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी वायरिंग अच्छी वाली करनी है, तो इसको हम कैसे करते हैं? इसकी टेक्निक क्या है? ये सिर्फ स्मोकिंग के लिए हम बात नहीं करते, किसी भी हैबिट के लिए जो आप चेंज करना चाहते हो। सबसे पहले अपनी कंपनी को चेंज करो। एक और एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से हम सीखते हैं। एक बहुत अच्छी फैमिली अपनी लड़की को, उनका बेटा था, मेरे पास लेकर आए कि इनको ना बहुत न्यूरो की याददाश्त प्रॉब्लम आ रही है। उनकी जस्ट एज 28 ईयर्स थी, याद नहीं रख पाते, कुछ भी बोल देते हैं, माइंड का काम नहीं करता। तो हमने देखा उसके पीछे एडिक्शन का रीज़न था, वो शराब बहुत पीते थे। तो हमने कहा आपकी फैमिली तो इतनी अच्छी है। तो कहते हैं हाँ फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी संगत गलत लग गई। अब संगत गलत लग गई, कितना भी मना करो, संगत में जाते हैं वो छोड़ नहीं पा रहे, जबकि लड़के को पता है ऐसा क्यों होता है। ये कौन है? मंकीज, है ना। मंकीज पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, न्यूरो साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया, मंकी को केला खिलाया, केला बहुत पसंद होता है ना। केला खिलाकर उसके ब्रेन की स्कैनिंग की कि ब्रेन में उसके कौन से एरिया सर्किट फायर करने लगे, एक्टिवेट हो गए। अब उन्होंने क्या किया, 2 मंकी लिए। पहला मंकी जो केला खा रहा था, अब वो केवल दूसरे मंकी को केला खाते हुए देख रहा था। उन्होंने फिर से उसके ब्रेन की स्कैनिंग की, मंकी सेम है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो केला खा रहा था और केवल देख रहा था, उसके ब्रेन में सेम टू सेम ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट हुए। मतलब जब आप कुछ कर रहे हो या किसी को देख रहे हो, ब्रेन में एक्टिविटी सेम होती है। मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, चॉकलेट पुडिंग खा रहा हूँ, आपके मुंह में पानी आता है सामने वाले को देखकर? क्यों भाई, आप तो खा नहीं रहे हो। क्योंकि जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे ब्रेन में भी वो एक्टिविटी एक्टिवेट होती है। ये क्यों आपको बता रहे हैं? कभी कभी हम कहते हैं नहीं मैं नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त करते हैं, मैं बस साथ में बैठता हूँ। लेकिन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वो भी आपके ब्रेन में फायरिंग करती है, और फायरिंग मेक्स, वेरी गुड, फायरिंग मेक्स, पक्का कर लो इसको, फायरिंग मेक्स। और फायरिंग कब होती है? जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में, कर रहे हैं, तब तो होगी ही होगी। ऑब्जर्व करने से भी फायरिंग होगी। इसलिए आपको अपनी कंपनी अच्छी रखनी पड़ेगी अगर आप अच्छा बनना चाहते हो। एक रॉटन एप्पल होता है ना, कहते हैं ना, वो स्पॉइल कर देता है बंच ऑफ एप्पल्स को। वो कुछ करता नहीं है, अपने आप ही उसकी कंपनी में रॉटन हो जाते हैं।
थॉट्स भी आपके न्यूरॉन्स को फायर करते हैं। जब आप कुछ सोचते हो तो भी ब्रेन में फायरिंग होती है। एडिक्टेड लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, पता है क्या प्रॉब्लम होती है? वो हमेशा ये सोचते हैं मैं इस नशे में फंस चुका हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। जब वो सोच रहे होते हैं तो वो फायरिंग कर रहे होते हैं अपने न्यूरॉन्स पर। फायरिंग से क्या हो रही है? वायरिंग। उनका वो नशे में फंसने का वायरिंग पक्का हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल पाते। इसके कंपैरिजन में हम माइंड थेरेपी में क्या करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि मैं नशे से बाहर निकल सकता हूँ, इनफैक्ट मैं नशा नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पसंद है, जबकि उसको भी पसंद है, लेकिन वो सिर्फ अपने माइंड को बोल रहा है। तो क्या होता है? फायरिंग कौन सी होती है? मुझे नशा पसंद नहीं है, वो धीरे धीरे वायरिंग हो जाती है। और जो चीज़ पसंद नहीं होती उसको कौन लेना चाहेगा? समझ रहे हो? आप इसको अपने स्टूडेंट लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। एक ट्रिक बताएं आपको। एक जो टॉपर होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे पढ़ता हो या ज़्यादा पढ़ता हो। एक टॉपर स्मार्ट स्टडी करता है, वो स्मार्ट होता है। एक स्टूडेंट जो ये कहता है एग्ज़ाम से पहले यार मुझे कुछ याद नहीं है, एग्ज़ाम में मैं तो फेल होने वाला हूँ, वो कभी टॉप कर नहीं सकता। ये लिखवा दो। जो टॉपर होगा वो क्या कहेगा? या तो वो चुप रहेगा या बोलेगा हाँ मैं कर लूँगा। उसके माइंड में क्या चलता है? मुझे आता है। आपने भी नोटिस किया होगा जब वाइवा देने जाते हो स्कूल में या कॉलेज में, तो टीचर के सामने गए, आपको आंसर आता था लेकिन बोल नहीं पाए, ब्लैंक हो जाते हो और बाद में कहते हो यार मेरे को तो आता था आंसर, मैं बोल नहीं पाया। क्यों ब्लैंक होते हैं? जो हम अपने माइंड को कमांड देते हैं ना, माइंड उसको वैसे ही लेता है और वही मैनिफेस्ट करने लगता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ, कुछ लोग कहते हैं अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन। सुना होगा ना आपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन? उसका साइंस ये है, जो आप सोचते हो वो होने लगता है। तो अगर आप ये बोलते हो मुझे कुछ नहीं आता, मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा, तो चांसेस क्या हैं? पढ़ भी रहे हो फिर भी याद नहीं रहेगा। तो आज से अब अपने फ्रेंड्स को क्या बोलना? मैं तो कर लूँगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है। तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होती जाएगी। ये नहीं बोलना मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। क्या बोलेंगे? मैं तो बहुत खुश रहता हूँ। खुश रहने लगोगे। ये एक माइंड पावर का गेम है, ठीक है? इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। पावर ऑफ माइंड कैसे काम करता है। ये स्टडीज़ भी हुई, क्यों? क्योंकि वो आपके वो पाथवेज को एक्टिवेट करता है। जो आप सोचते हो, बोलते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा मैनिफेस्ट होने लग जाता है। तो ऐसा देखा गया, जब आप एफर्म करते हो तो हम इन एडिक्टेड लोगों को बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं अपने साथ? मैं तो एडिक्टेड नहीं हूँ, मेरा कंट्रोल है मेरे माइंड पर, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं नशा नहीं करता। धीरे 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 उसका माइंड उसको पिकअप करता रहता है और वो देखते हैं कि नशा अपने आप ही छूट जाता है। और अगर वो ये बोलते हैं मैं तो नशे का आदी हो चुका हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, वो उसके अंदर फंसते जाते हैं। तो आपका स्ट्रेस कम होता है। एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कितने लोग एक्सरसाइज सुबह उठ के करना चाहते हैं और कितने लोग एक्चुअली करते हैं? तो अगर जो करना चाहते और कर नहीं पाते, तो रात को ये नहीं सोच के सोना कि यार मैं चाहता तो हूँ, उठ नहीं पाऊंगा। ज़्यादा चांसेस है नहीं उठ पाओगे। क्या सोच के सोना? मैं तो उठ जाऊंगा। और अपने आप को विजुलाइज करना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो। चांसेस ज़्यादा है कि आप उठ जाओगे, एक्सरसाइज करोगे। तो जो लोग हेल्दी रहना चाहते थे, एकेडमिकली अच्छा करना चाहते थे, जो बोलने लगे वो होने लगा, वही स्मार्ट स्टूडेंट होता है। यही टेक्निक है मेडिटेशन की। जेन जी को लगता है बाहर सब चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है। मटेरियल चीज़ों को लेना, एकेडमिकली अच्छा करना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है।
लेकिन हम स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे हैं। हम स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारा एफर्ट ज़्यादा है, आउटपुट कम आ रहा है। क्यों? पहली चीज़ तो जो हम चाहते हैं वो सोच नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो हमें जाना इस तरफ है, हमारी सोच और बोल हमारे लेके जा रहे हैं दूसरी तरफ। दूसरी चीज़, हम एडिक्शंस में फंस गए हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, हम अपनी रूट्स को भूल गए हैं। मेडिटेशन इंडिया का एक बहुत पुराना, कहते हैं ना, योग ध्यान इंडिया, भारत की देन है। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन कुछ नहीं है, सिंपली आप अपने ब्रेन में जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसकी थिंकिंग से वायरिंग कर रहे हो। मेडिटेशन कैसे काम करता है? मेडिटेशन अभी आप सीखेंगे, सिस्टर्स कराएंगे आपको। जब आप मेडिटेट करते हो तो उससे एक तो साइलेंस आता ही है, मन शांत होता है। दूसरी चीज़, आपकी स्ट्रेस कम होती है और क्रेविंग कम होती है। क्योंकि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने साथ बैठते हैं और अफर्म करते हैं क्या? आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी लवफुल, आई एम वेरी हैप्पी। तो जब आप बोल रहे हो आई एम वेरी हैप्पी, तो क्या हो रहा है? आपके हैप्पीनेस के सर्किट में क्या हो रही है? फायरिंग। और बार बार करने से क्या होगी? वायरिंग। तो आपको हैप्पीनेस बाहर से नहीं लेनी होगी, हैप्पीनेस अपने आप ही फील होगी। है अमेजिंग बात? मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, मेरा मन बहुत वॉन्डर करता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन में अपने आप को अफर्म करते हो, मैं हूँ ही पीसफुल, आई एम वेरी पीसफुल, तो विद टाइम क्या होगी? फायरिंग होते होते वायरिंग हो जाएगी। आप देखोगे आप पीस अपने आप ही आ जाएगी, बाहर चाहे कितना भी केओस हो। ये इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन से न्यूरोप्लास्टिसिटी होना। और एक मजे की बात, इसका साइंटिफिक भी देखा गया। ये प्लांट पता है किस चीज का प्लांट है? कोई गेस कर सकता है? ये कैनाबिस है। कैनाबिस, चरस। तो जब कोई चरस लेता है ना तो उसको बहुत खुशी मिलती है, और जैसे वो उसका माइंड क्लाउड 9 पर होता है, 7वें आसमान पर बोलते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर दिखाया। लेकिन यहाँ पर ये एक योगी भी दिखाया है, तो क्या योगी भी चरस ले रहा है? ऐसा लेते हैं ना आजकल चिलम। हाँ, यहाँ पर योगी इसलिए दिखाया, साइंटिस्ट ने देखा जब कोई एक योगी योग करता है, मतलब मेडिटेट करता है, तो उसके ब्रेन में केमिकल निकलता है जो ये होता है, ऐसा दिखाई देता है, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कैनाबिस जैसा होता है, और वो दोनों ब्रेन में नर्व्स पर एक ही काम करते हैं। समझ रहे हो? मेडिटेट करते हुए उसके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज हुए जो ब्लड में निकले, और वो केमिकल्स बिल्कुल सेम थे, कैनाबिस जैसे थे, और दोनों उसको वही खुशी दे रहे थे। साइंटिस्ट ने उस केमिकल का नाम रख दिया आनंदामाइड। उनको इससे अच्छा कोई शब्द नहीं मिला। आनंद ब्लिस होता है, हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है? सैड। जॉय का सॉरो। ब्लिस का या आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड पता है आपको? निरानंद कभी सुना है आपने? नहीं होता। आनंद इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्लिस। इतनी खुशी मिलती है। वो है क्या? सिंपल है, अपने ही अंदर जब हम अफर्म करते हैं अपने आप को, और गॉड, क्योंकि गॉड, अब आप थोड़ा सा अगर इसको समझो तो गॉड क्या है? गॉड वो नहीं है जो भगवान के सामने आप जाकर मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, थोड़ा समझना होगा। वो तो उसका एक रूप दिखाया है, लेकिन गॉड क्या है? गॉड एक्चुअली वो है जो हमेशा खुश रहता है। आपने मंदिर में देखा है किसी को उदास देखा है आपने? नहीं देखा है। तो उसकी क्वालिटीज से गॉड या एंजल बनते हैं। आज एक डॉक्टर बहुत अच्छा ऑपरेट करता है तो लोग उसको क्या कहते हैं? आप तो बिल्कुल जैसे भगवान हो। तो कोई वो मंदिर में मूर्ति थोड़ी ना है उसकी क्वालिटी ऐसी है। तो क्वालिटी मेक्स गॉड, नॉट जस्ट दी फेस।
फेस से कोई गॉड नहीं बनता है, उसकी क्वालिटी से बनता है। तो गॉड की क्वालिटी हैप्पीनेस। तो जब मेडिटेशन में हम गॉड को ऐसे याद करते हैं कि वो गॉड इतना हैप्पीनेस उसके अंदर भरी हुई है, एम्बॉडीमेंट है, और हम गॉड के कौन है? कौन है गॉड के? हम बच्चे हैं ना, कहते हैं ना हम आपके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो पिता और बच्चे एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग? अगर आपकी शक्ल अपने पापा मम्मी से नहीं मिले प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ऐसे ही अगर गॉड जैसे हमारे कैरेक्टर्स ना हो तो लोग हमें इंसान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शैतान। तो इसलिए तो कहने का मतलब एक हमने हैप्पीनेस का एक एग्जाम्पल दिया। और गॉड की क्या क्वालिटीज हो सकती है बताओ? एक तो हैप्पी रहेगा वो, और क्या देखते हो गॉड? वो पीसफुल होते हैं या एंग्री होते हैं? हाँ, पीसफुल होते हैं, वेरी गुड। वो लवफुल होते हैं या हेट करते हैं? तो क्या हम हमेशा लवफुल होते हैं या कभी कभी हेट भी करते हैं? करते हैं ना, कभी कभी एंग्री भी हो जाते हैं। होना चाहिए? तो अपने पापा का नाम खराब कर रहे हो, गॉड फादर, है ना। तो मेडिटेशन में ये केमिकल आइसोलेट हुआ, जो देखा बिल्कुल कैनाबिस जैसा था, और इसके ऊपर बहुत सारी फिर स्टडीज़ की, 4754 स्टडीज़ हैं। क्यों क्यों हैं? आपको पता है क्यों है? सबसे ज़्यादा स्टडीज़ यूएस में हुई, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास पैसा तो था लेकिन खुशी नहीं थी, ताकि वो एक केमिकल को आर्टिफिशियल बना सके और लोगों को इंजेक्ट कर सके और उनको फियर डिप्रेशन से दूर कर सके। मेमोरी को बूस्ट करता है ये, आपके एपेटाइट को बेटर करता है, स्लीप को इम्प्रूव करता है, पेन में रिलीफ करता है, कैंसर सेल्स को कट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और एडिक्शन रिमूवल में भी हेल्प करता है। और सिंपल फिलॉसफी है, एडिक्शन किसी को क्यों लगा? हमने क्या बोला था? क्यों हुआ था एडिक्शन? क्यों हुआ था शुरू में? स्ट्रेस, और चाहिए थी खुशी। जब मुझे खुशी आनंदा माइंड से मिल रही है और मैं डी स्ट्रेस हो रहा हूँ, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? इसलिए राजयोग मेडिटेशन काम करता है। डी एडिक्शन सेंटर में ये चीज़ नहीं मिलती। मोबाइल एडिक्शन, अगेन ये सर्किट जब बन गया मोबाइल एडिक्शन का, याद रखना, यहाँ से ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना जो जाओगे बाद में। फायरिंग मेक्स वायरिंग, और फायरिंग कब हो रही है? जब भी हम कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मार्टफोन एडिक्शन से भी वायरिंग ऐसी हुई, जब हमने औरों को देखा स्मार्टफोन एडिक्शन में, तो हमने भी वो करना शुरू किया और हमारी भी वायरिंग हो गई। तो उसका एंटीडोट क्या होगा? मेडिटेशन से जब मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया, क्या ट्रेन किया? सिंपल ट्रेनिंग, सुबह बैठो, मैं मोबाइल फ़ोन को सिर्फ काम के लिए यूज़ करता हूँ। माइंड को बोलो, एफर्म करो, मैं मोबाइल का एडिक्ट नहीं हूँ, मैं केवल इसको काम के लिए यूज़ करता हूँ। आपने उसको कमांड दे दिया, वो फायरिंग वायरिंग करेगा, आप एडिक्शन से फ्री हो जाते हो। और ये स्टडीज़ में देखा गया कि वो करते हैं ऐसा। फाइनली डाइट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे माइंड के ऊपर। जब हम कुछ खाते हैं ना, तो हमारे गट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो सीधा ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होकर ब्रेन को इफेक्ट डालते हैं। इसका एक एग्जांपल है, इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। क्या किया गया, जो लोग बहुत एग्रेसिव थे ना, जो बहुत सोशली एंग्शियस थे, उन लोगों के गट के उन बैक्टीरिया को लेकर माइस में, चूहों में डाल दिया गया, और देखा गया कि वो चूहे भी कुछ दिन बाद एग्रेसिव हो गए। जो आप खाते हो उसका आपके मन पर इफेक्ट पड़ता है। तो स्विगी, जोमेटो, जब ये सब आप खाते हो ना, तो जो फूड की क्वालिटी और वाइब्रेशन होता है वो नेगेटिव, क्योंकि कौन बना रहा है उसको? वो मम्मी नहीं बना रही है, वो पर्सन बना रहा है जिसका माइंड उसको पैसा कमाने के लिए है। और वो उस समय क्या सोच रहे हैं हमें नहीं पता, वो किस बैकग्राउंड से है, कहाँ से आए, वी डोंट नो।
वो सारी चीज़ें उस फूड में आपके टमी से होकर ब्रेन में जा रहे हैं, वो थिंकिंग वैसी आ रही है। लोग ज़्यादा स्ट्रेस में इसलिए क्योंकि वो लोग स्ट्रेस में हैं, और मम्मी जब बनाते हैं मम्मी प्यार से बनाते हैं। मम्मी बनाते हैं उसमें मम्मी उसके अंदर डालते हैं कि आपका ब्रेन बूस्ट हो, वो आपको हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड को हमेशा अपने माइंड में इम्प्रिंट कर लो। प्लेजर, खुशी ह्यूमन काइंड को चाहिए। कोई ऐसा है यहाँ पर जो कहे कि मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए? कोई भी नहीं कहेगा, एनिमल्स भी नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं कहेगा, ठीक है ना। लेकिन एनिमल्स में और हम में एक चीज़ का फ़र्क है, हमारे पास ब्रेन है, हम सही गलत को जानते हैं। खुशी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि आप लोग यंग लोग हो तो एक स्टोरी बताता हूँ जिसको हमेशा खुद भी याद रखना और कोई गलत काम करे उसको भी याद दिलाना। एक डॉग होता है ना, उसका फेवरेट फूड होता है बोन और उसके ऊपर लगा हुआ फ्लैश। इसलिए देखा है ना आपने, डॉग को हमेशा बोन और फ्लैश का दिखाते हैं। लेकिन डॉग जब वो फ्लैश को खाता है ना, तो शुरू में उसको अच्छा लगता है, लेकिन एक बार फ्लैश खत्म हो गया और बोन को जब वो च्यू करता है तो बोन शार्प हो जाती है। अब जब बोन शार्प हो जाती है ना, तो उसके वो गम्स में हिट करती है और वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और वो अपना ही ब्लड को ड्रिंक करता रहता है और वो एंजॉय करता है। वो अपने ही ब्लड को ड्रिंक करता है और उसको एंजॉय करता है। एंजॉयमेंट है ना, ऐसे एंजॉयमेंट को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली। जब हम ड्रग्स लेते हैं, जब हम मोबाइल एडिक्ट होते हैं, या हम स्मोकिंग अल्कोहल की तरफ जाते हैं, तो हम एंजॉय तो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मज़ा आता है, अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन्स डोपामिन रश होता है ना। लेकिन आप अपने ही ब्रेन को डैमेज कर रहे हो, आप अपने ही हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। तो किस में आ जाएगा वो? पॉजिटिव प्लेजर में, नेगेटिव प्लेजर में? वेरी गुड, नेगेटिव। याद रखना, कभी भी जो चीज़ आपको खुशी दे चेक कर लेना ये नेगेटिव प्लेजर तो नहीं है। पॉजिटिव प्लेजर, मेडिटेट कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, खेल रहे हो, हॉबी है आपकी, वो आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। आपको अच्छा लगता है, आपको एक्सरसाइज करना, खेलना अच्छा लगता है, वो आपका क्या हो गया? खुशी भी दे रहा है और आपके ब्रेन को बूस्ट भी कर रहा है। पॉजिटिव प्लेजर। तो मेडिटेशन ओल्ड फैशन नहीं समझो, ये आपको प्लेजर भी देगा और आपके माइंड को बूस्ट भी करेगा, और आप टॉपर बनोगे। टॉपर बनोगे तो आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी एक्सेल करोगे। मैडम जो थे 23 इयर्स पे, आप खुद सोचो, 5 साल बाद, आपसे 5 साल बड़े मैडम, उन्होंने IAS एग्ज़ाम क्रैक किया। कैसे? कैसे? यही की पावर से किया ना। तो इसकी पावर को कभी नहीं भूलना। तो इसलिए मेडिटेशन को हमेशा ध्यान रखना, आपका ब्रेन हैप्पी हो रहा है या सिर्फ आपका डोपामिन रश आ रहा है। तो राजयोग, मैंने ब्रह्मा कुमारी में बीइंग अ डॉक्टर, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, आप जैसे हैं अभी स्टूडेंट इंजीनियरिंग के, लॉ स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट था। राजयोग मैंने सीखा और प्रैक्टिस करना शुरू किया, और उसके बाद से जब माइंड डी स्ट्रेस होता है तो पढ़ाई भी अच्छे से, मेमोरी पावर आपकी अच्छी होती है। वो प्रैक्टिस किया, कुछ छोड़ना नहीं है, आपको अपने ब्रेन को बूस्ट करना है। राजयोग आपको मेडिटेशन जो ब्रह्म कुमारी इसमें यहाँ पे सिखाते हैं, वो आपके ब्रेन को पावरफुल करता है, जिसको हम कहते हैं टॉप डाउन कंट्रोल। मतलब आपका ब्रेन इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एडिक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, सही गलत का डिसीजन ले सकता है, मेमोरी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। और एक टर्म होता है मोटिवेशनल कन्फ्लिक्ट। मुझे स्ट्रेस बहुत है तो मुझे अल्कोहल अट्रैक्ट करेगा, स्मोकिंग अट्रैक्ट करेगी। मूवीज़ में दिखाते हैं ना, परेशान है तो हम इस तरफ चले गए। कन्फ्लिक्ट आ रहा है माइंड में कि मैं क्या करूं, मुझे पता है गलत है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, तो कन्फ्लिक्ट है। इसको भी वो रिजॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि आपको प्लेजर कहाँ से मिल रहा है? आनंदा माइंड से। तो यंगस्टर्स, ये वो ब्रेन है जो एडिक्टेड ब्रेन है।
ठीक है, फंसा हुआ है अपने ही हैबिट्स में, और इसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, विच इज़ अ ब्रेन रीवायर। फायरिंग से आपने वायरिंग चेंज कर दी अपनी, अब आप अच्छी चीज़ों से अपने ब्रेन को भर रहे हो, खराब चीज़ों के एडिक्शन से छोड़ पा रहे हो अपने आप को। ये किसी भी चीज़ के लिए ट्रू है, क्योंकि आज का टॉपिक नशा मुक्ति पर था तो हमने उसका एग्जाम्पल लिया। तो ये पूरी एक साइंस है जो इवॉल्विंग है, इसलिए मेडिटेशन, इन चीज़ों को ये नहीं समझना कि ये क्या ओल्ड फैशन चीज़ें हैं, ये आपके ब्रेन को, ये आपको ही ऊपर लेकर जाएंगी। तो अगर आप लोग ये चीज़ और जानना चाहते हैं इसके बारे में कि साइंस कैसे काम करता है, तो आप जहाँ भी रहते हैं घर के पास आपके ब्रह्मा कुमारी सेंटर होगा, आप मोबाइल में सर्च कर सकते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर मी, वहाँ पर सिस्टर्स होती हैं, वहाँ जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो वो आपको बेसिक एक 7 डेज़ का, जिसमें हाफ टू 1 आवर वो आपके टाइम के हिसाब से वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आप अपने स्टडीज़ के साथ ये भी इंक्लूड करोगे तो आपका माइंड भी फ्री रहेगा, स्टडीज़ भी अच्छे कर सकते हो। तो जो लोग करना चाहते हैं वो अपने घर के पास ढूंढ सकते हैं। जो मैंने किया मुझे फ़ायदा लगा, इसलिए मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करूँ। For enlightening us with the concept of firing and wiring. I'm sure this is going to help all the students who are sitting here, and you can help your near and dear ones with this. So, sir, thank you for rendering your services to the mankind and helping our society to deal with all such issues. I'm sure all who are present here must have gained knowledge about the brain functioning and the power of manifestation and meditation. Thank you, sir. Now, I would like to invite B.K. Rajni Didi. B.K. रजनी दीदी ने बाल्यावस्था में ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर समाज कल्याण का मार्ग अपनाया। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने त्याग, तपस्या और सेवा पथ पर स्वयं को न्यौछावर करने का दृढ़ संकल्प लिया। डीयू से ग्रेजुएशन करने के बाद दीदी ने कुछ समय NCERT और EIL में जॉब भी किया है। 1993 से संपूर्ण समर्पण ब्रह्मा कुमारीज अंतर्राष्ट्रीय संस्था में करने के उपरांत आपने नेशनल और इंटरनेशनल फील्ड में भी अपनी सेवाएं दी हैं। दीदी सीनियर राज योगा एक्सपर्ट है। स्ट्रेस फ्री लिविंग, एंगर मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, हार्मनी इन रिलेशनशिप, गेट रिड फ्रॉम एग्जामिनेशन फियर एटसेट्रा सब्जेक्ट्स पर आपने महारत हासिल किया है। दीदी इज करंटली डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इन सेक्टर 21 रोहिणी एंड द कनेक्टेड ब्रांचेस. She is giving selfless services in the colleges from last 19 to 20 years. Over to you. ओम शांति। आप सभी एक बार बोलेंगे ओम शांति। उसको रोकिए पीछे। आप शायद ऐसा समझ रहे होंगे कि ब्रह्मा कुमारी से हैं इसलिए ओम शांति बोल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा जो आपका यहाँ लाइब्रेरी में स्पिरिचुअल लाइब्रेरी जो बनी हुई है, सभी स्टूडेंट्स ने देखी होगी ना अपने कॉलेज की? देखी है? कोई है जिन्होंने नहीं देखी अपने कॉलेज की स्पिरिचुअल लाइब्रेरी? मैं स्पेशली वो देखने गई थी, जब यहाँ आई थी तो मुझे दिखाया ये कॉलेज की। अच्छा, आप सबने नहीं देखी हुई है? ओके ओके, तो मैंने देखी है। उसमें आपका एक मेडिटेशन रूम भी बना हुआ है और उसमें बहुत बड़ा सा ओम लगा हुआ है मेडिटेशन करने के लिए। तो जो ओम या ओम शांति वर्ड है वो ब्रह्मा कुमारीज ने, जो हमारी भारतीय संस्कृति का है, हमारे पुराणों से चला आ रहा है, सदियों से ऋषि मुनियों से चला आ रहा है, भारत के इस महामंत्र को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करने में ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बड़ा रोल है। ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन सिर्फ भारत में ही नहीं है, लेकिन एक इंटरनेशनल NGO है जिसके 140 कंट्रीज़ के अंदर ब्रांचेज हैं। यूनिसेफ और यूनेस्को से भी ये संस्था साथ मिल कर के उसके कार्य करती हैं। तो जैसे अभी आप सबने डॉक्टर साहब का भी सुना, हमारे सब के बीच में DM मैम भी आई थी, तो मैं एक छोटी सी चीज़ जो मुझे बीच में आप सबको देखकर और मैम का सुनकर, डॉक्टर साहब का सुन कर के याद आई, वो ये थी कि जैसे हम
कोई भी आजकल देखेंगे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं या कहीं कंपटीशन के लिए जाते हैं, तो उसमें हमारा क्या टेस्ट किया जाता है? एक टेस्ट होता है ना, ट्यूशन टेस्ट करते हैं। उसमें क्या ट्यूशन टेस्ट करते हैं? आईक्यू टेस्ट होता है ना सबका, इंटेलिजेंस करते हैं। उसके साथ साथ कई जगह मेंटल भी होता है, एमक्यू भी होता है, कहीं कहीं पर ईक्यू भी होता है, इमोशनल क्वेश्चन भी करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो है एसक्यू, जिसकी ओर शायद हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। और वो क्या है? वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। हम सोचते हैं ये तो शायद किसकी बातें हैं, जैसे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब से कि सोचते हैं तो बूढ़ों की बातें हैं, बड़े हो जाएंगे उनकी बातें, हमारा नहीं है। लेकिन कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को जो है इंक्रीज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने आईक्यू के साथ साथ एसक्यू पर भी ध्यान देंगे। कि आप में से किसी को कोई ऐसे हैं जिसको कोई एग्जामिनेशन फियर होता हो? कोई है स्टूडेंट्स ऐसे? रेज योर हैंड्स प्लीज, जिनको एग्जामिनेशन फियर होता है। डरने की बात नहीं है, आप नहीं डरो के हाथ उठाओ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये कोई एग्जामिनेशन हॉल नहीं है आपका। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, अभी देखो कुछ ने तो हाथ खड़ा किया और मैं सोचती हूँ शायद कुछ शाय फील कर रहे होंगे, तो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको जो है ये स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है, जो मेडिटेशन है वो बहुत हेल्प करता है। तो उसके लिए छोटी सी आपको मैं एक टिप बताऊंगी कि जब भी हम एग्ज़ाम, जिससे भी हमको जो फियर क्रिएट कर रहा है हमारे अंदर, जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो हमने क्या करना है? विज़न क्रिएट करना है। क्या विज़न क्रिएट करेंगे? जिस भी सब्जेक्ट में आपको डर लगता है या किसी भी एग्ज़ाम से या सारे एग्ज़ाम्स में आपको ऐसा लगता है कि जब हम जाते हैं तो घर से तो हम सब कुछ लर्न करके गए और जब वहाँ बैठे जैसे ही वो एग्ज़ाम हमारे सामने आए, शीट हमारे सामने आई, तो जो याद किया था वो सारा क्या हो गया? ब्रेन वॉश हो गया। फिर जैसे ही बाहर निकले तो क्या होता है? कहते हैं तो सारा हमको फिर से याद आ गया। ठीक है, तो उसके लिए आप छोटा सा एक विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज करेंगे कि जब आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जब आप बुक आपके हाथ में है तो उस समय आप विजुअलाइज करेंगे कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है और जो भी मैं लर्न कर रहा हूँ वो मेरी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है। और फिर आप विज़न क्रिएट करेंगे कि हम यहाँ से अपने घर से निकले एग्ज़ाम देने के लिए, हम कॉलेज में गए, बड़े कॉन्फिडेंट होकर हम कॉलेज में जा रहे हैं। हम कॉलेज में गए, कॉलेज में जब गए तो हम वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर बैठे, हमारे सामने वो एग्ज़ाम आया है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने लर्न किए हैं, सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने लर्न किए थे। और मैंने सारा वो एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद मैं बहुत खुशी घर आया और जब मेरा रिजल्ट आया तो रिजल्ट में क्या है? आई एम द टॉपर, आई एम द टॉपर। तो ये आपने क्या करना है? एक विज़न क्रिएट करना है, इसको विजुअलाइज करना है। और आप सोचेंगे क्या सोचने से हम टॉपर बन जाएंगे? बन जाएंगे सिर्फ सोचने से? बनेंगे? यस और नो? यस बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो सोचते हैं यस हैंड रेज करें। बन सकते हैं या नहीं बन सकते? अच्छा, आप सब ने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि एक बहुत बड़े जो साइंटिस्ट थे तो उनकी माँ ने उनको कहा कि स्कूल में से तुम्हारे टीचर ने क्या कहा कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। सुना ना आप सब ने? ये सुना हुआ है। तो वो कैसे बना? कैसे बना? सोचने से बना या भाग्य की लकीरों से बना? किससे बना? अगर आपको सिर्फ सोचने से स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या है? नेगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग। तो सोचने से आपके सिर में दर्द हो सकता है, सोचने से आपको स्ट्रेस हो सकता है, सोचने से आप फेलियर हो सकते हैं, सोचने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो सोचने से आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तो मेडिटेशन हमको सिर्फ यही सिखाता है कि जो अभी बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रेन में क्या करना है? रीवायरिंग।
रिवायरिंग करनी है। तो हमने अपनी सोच में ये चीज़ लानी है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा पूरा शरीर चल रहा है वो किससे चल रहा है? हमारे ब्रेन से ही तो, हमारी सोच से ही तो चल रहा है। आज हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स, क्यों हमारी भारत सरकार को ये अभियान चलाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमारी डीएम मैम इतनी बिजी होते हुए भी आप सबके बीच में आई, हमारे डॉक्टर साहब अपनी ओपीडी छोड़ करके लीव लेके आप सबके लिए आए हैं। और कल इनका, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको कल बुलाया, उनके साथ इनके अपॉइंटमेंट है, इतना बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद भी आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? इसलिए कि सोच से सब कुछ हो सकता है। तो जब तक हम अपनी सोच के अंदर वो चीज़ें नहीं डालेंगे, जब तक हम वो विज़न क्रिएट नहीं करेंगे और अपने आप को हम बार बार कर्स करते रहेंगे, श्रापित करते रहेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है, दूसरों के साथ नहीं होता, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तो हम कभी भी सक्सेसफुल स्टार नहीं बन सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे अभी हमारी डीएम मैम ने भी कहा, हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो भी आपके बीच में आ रहे हैं गेस्ट, आपने उनको इम्पोर्टेंस देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि वो आपके साथ, उनके पास ऐसा नहीं कि कोई खाली टाइम है, वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास आ गए हैं, चलो थोड़ा टाइम बिता जाते हैं, कॉलेज में जाके टाइम नहीं पास हो रहा हमारा, क्या करें, खाली बैठे बैठे बोर हो गए, इसलिए टाइम पास करने आए हैं क्या कॉलेज के अंदर? इसलिए थोड़ी आए हैं, इसलिए आए हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हम अपना एक्सपीरियंस दे सकें। आज आपको शायद ये ग्रे हेयर दिख रहे होंगे, एज बड़ी दिख रही होगी, लेकिन आप क्या सोचते हैं जब हमारा बर्थ हुआ था तो ऐसे ही थे क्या, या आपकी एज को क्रॉस करके आए हैं? किया है सबने उस एज को, जिसके भी आप आज ग्रे हेयर देख रहे हैं, ओल्ड एज में जिसको देख रहे हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो आप सबकी एज को क्रॉस करके ही यहाँ पर पहुँचे हैं। आपके सीनियर्स, आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, ठीक है? तो सोच से सब कुछ हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा सोचेंगे कि हमारे ब्रेन में क्या हो, फिर से रिवायरिंग हो जाए। ओके, तो सभी स्ट्रेट बैठेंगे, हाथ में जो कुछ है उसको छोड़ देंगे, हैंड्स फ्री हो जाएंगे, छोड़ देंगे, बैग मोबाइल सब हटा देंगे अपने आसपास से। आइज क्लोज करना चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन रखना चाहे तो ओपन भी रख सकते हैं। फील करेंगे अपनी ब्रीदिंग को, इन और आउट। केवल आपने उस पर कंसंट्रेट करना है और कुछ नहीं सोचना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे आपका माइंड कंसंट्रेट हो रहा है। ऑटो सजेशन दें, खुद को बोलें कि मेरा मन धीरे धीरे कंसंट्रेट हो रहा है। काम एंड पीसफुल। मेरे अपने ही अंदर ये शांति है, खुशी है, प्यार है। मेरे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट है। A tiny point of light shining in the middle of my forehead. और उस छोटे से स्टार से खुशियों का फाउंटेन निकल रहा है, और वो खुशियों का फाउंटेन मेरे पूरे ब्रेन से होते हुए ब्रेन के थ्रू नेक में, फेस में, शोल्डर्स, आर्म्स, स्टमक, चेस्ट,
upper legs, lower legs। ये खुशियों का फाउंटेन स्टार से निकलकर मेरी पूरी बॉडी में जा रहा है। ये छोटा सा स्टार, यही मेरी ओरिजिनलिटी है। I am a star of peace, star of happiness, star of success। I am a powerful being। Everything is possible for me। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। I'm child of Almighty God, Master Almighty। All mights merge in me। और जैसे जैसे मैं इस स्टार के ऊपर कंसंट्रेट कर रही हूँ, मेरी मोस्ट पावर्स इमर्ज हो रही हैं। मेरी मेमोरी शार्प हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस स्टार के अंदर ही एक टॉपर जो गुप्त रूप से अंदर बैठा है, आज उसे जगाना है। और जितना हम उसके उस स्टार के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, मेरा गोल क्लियर और पावरफुल होता जा रहा है। मैं अपने गोल पर फुली कंसंट्रेटेड हूँ। एक छोटा सा स्टार जहाँ हम तिलक लगाते हैं, उसे पावर्स का, पीस का, हैप्पीनेस का, स्पिरिचुअल लव का आनंदा फाउंटेन निकल रहा है। I am a peaceful soul। I am a powerful soul। I am a blissful soul। आंखें खोल सकते हैं। थैंक्स टू ऑल, आप सबने इतने ध्यान से सुना। ये जस्ट आपको राजयोग का मेडिटेशन का हमने टेस्ट कराया, लेकिन आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोचना कि हम अपने एसक्यू को कैसे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू। Thank you, Didi. Now let us take a pledge today. I invite BK Preeti Didi for taking a pledge. ओम शांति। ओम शांति। आप सभी अपनी अपनी स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
और अपना राइट हैंड आगे करेंगे। हम शपथ लेंगे अभी। मैं शपथ लेती हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूँगी। और अभी हम दूसरी शपथ लेंगे, स्वदेशी भारत प्रतिज्ञा। मेरे साथ साथ बोलेंगे। प्रिय साथियों, हम भारतवासी यह संकल्प लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण के लिए हम स्वदेशी और भारत में निर्मित चीज़ों को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएंगे और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर गर्व महसूस करेंगे। और अब से हमारी हर खरीद, हर निर्माण मातृभूमि के गौरव और सम्मान, स्वाभिमान से प्रेरित होगी। हम भारतवासी यह संकल्प लेते हैं कि हम स्वदेशी और भारत के निर्मित चीज़ों को अपनाकर अपने किसान, श्रमवीर, वैज्ञानिकों और सैनिकों के परिश्रम का सम्मान करेंगे। हम अपनी तकनीक और अपने ज्ञान के साथ हर उस चीज़ का समर्थन करेंगे जिससे आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत का संकल्प पूरा हो। ओम शांति। Thank you, Didi. Now, as all of you know that it is the birthday of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. मोदी जी का आज जन्मदिन है तो उनके लिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है कि त्याग तपस्या की मूरत है, त्याग तपस्या की मूरत है। पीछे एक बात आई थी कि मोदी जी ने कहा कि इनका तो परिवार ही नहीं है, ये क्या परिवार देश की सेवा करेंगे, तो उसका एक जवाब मैंने लिखा था कि त्याग तपस्या की मूरत है, एकाकी जीवन में है, छोटा सा परिवार नहीं है, एक एक के मन में है। पीएम तो वो निमित्त मात्र है, असल में चौकीदार है वो। एक एक नागरिक कहता है मोदी का परिवार है वो। देश की खातिर खपा रहा है, पूरा जीवन अपना वो देख रहा है, विकसित भारत बन जाने का सपना हो। देश की खातिर मर मिटने को हरदम ही तैयार है वो। एक एक नागरिक कहता है मोदी का परिवार है वो। किसी ने उसको चोर कहा है, हाँ वो चोरी करता है। भ्रष्टाचारी बच ना पाए, सीना चोरी करता है। महिलाओं के जीवन से वो सारा धुआं चुराता है। लकड़ी जला रहे थे पहले, उनको गैस दिलाता है। हीन भावना से ग्रसित थे, दीनहीन गमगीन थे वो। शौचालय के बिना जैसे बिन पानी के मीन थे वो। उसने उनको इज्जत दी है, शौचालय प्रदान किया। अंतिम पायदान पर थे जो, उनको भी सम्मान किया। बदबू थी जीवन में उनके, उसने बदबू चोरी की। हीन भावना से ग्रसित थे, उनकी जीवन गोरी की। 3 तलाक का दंश छुड़ाया, डर डर के जीते थे वो। व्यक्त नहीं करते थे दुख को, मन में ही पीते थे वो। व्यथा उन्हों की चोरी की है, हल्का करता भार है वो। एक एक नागरिक कहता है मोदी का परिवार है वो। किसी ने वोट की चोरी की थी, किसी ने धन की चोरी की। मोदी ने एक देश जगाकर सबके मन की चोरी की। किसान के नाम पे छलने वाले वो भी सॉरी कहता है। ईमानदार मिसगाइड ना हो, उससे भी वो डरता है। उनकी खातिर अपमानों को पीने को तैयार है वो। एक एक नागरिक कहता है मोदी का परिवार है वो। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जीना भी कोई जीना है। भारत का ही विश्व पटल पर 56 इंची सीना है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिखा दिया है मोदी ने, विश्व पटल पर भारत का नाम लिखा दिया है मोदी ने। टैरिफ की धमकी के आगे हुआ नहीं लाचार है वो।
एक एक नागरिक कहता है मोदी का परिवार है वो, और मातृभूमि के दुख दर्दों को करता रोज निवारण है, मातृभूमि के दुख दर्दों को करता रोज निवारण है। आरएसएस के संस्कारों का मोदी श्रेष्ठ उदाहरण है, जीवन शैली बहुत सरल है और विरक्त है मोदी की। भारत क्या सारी दुनिया ही अंधभक्त है मोदी की, और सारी दुनिया नतमस्तक है, सबकी खातिर प्यार है वो, एक एक नागरिक कहता है मोदी का परिवार है वो। ओम शांति। बहुत ही सुंदर कविता मोदी जी के लिए, एक एक नागरिक कहता है मोदी का परिवार है वो। थैंक यू। Now, as we pray for all, we pray for ourselves too, and we begin to heal and become well. This is a prayer which is really a reminder for ourselves, right? So I hope all of you have learned a lot from this session. There's an announcement of the conference which is going to be organized by Brahma Kumari's Jurist Wing. It is on organizing a national juristic conference on justice with wisdom, Raj Yoga meditation, a tool for unity and trust, from 3rd to 5th October 2025 at Brahma Kumari's on Om Shanti Retreat Center, Pataudi Road, Gurugram. So if you are interested, you can contact Didi and you can attend this conference. Thank you everyone for joining with us. There is an arrangement for prasad outside. I request everyone to please take their prasad. Thank you everyone. Thank you.